السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ساتھیوں کا خوش آمدید کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اپنی پسندیدہ یوٹیوب چینل سرتاج اکیڈمی میں۔ ساتھیوں، آج کے اس کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں بہار بورڈ کلاس 10 چیپٹر نمبر 9۔ آئیے آج کی کلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور آج کی کلاس کو ہم دیکھتے ہیں۔ آج اس کلاس میں ہم پڑھیں گے ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ آئیے دیکھتے ہیں کلاس کو۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر 14 اپریل سن 1891 کو مہو سینٹرل انڈیا میں پیدا ہوئے۔ یعنی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش 14 اپریل سن 1891 کو سینٹرل انڈیا میں پیدا ہوئے۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے والد کے نام رام جی ماروجی سکپال تھا۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ بھیم راؤ امبیڈکر اپنے والدین کے 14ویں اور سب سے چھوٹی اولاد تھے۔ سب لوگ پیار سے انہیں بھیما کہا کرتے تھے۔ بھیم راؤ امبیڈکر نے بھیما راؤ کے نام سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ یعنی بھیم راؤ امبیڈکر جس نام سے پڑھ رہے تھے ان کے نام بھیما بائی تھا اسکول میں۔ بھیم راؤ امبیڈکر اپنے دادا ماروجی کی طرح سے ان کے والد رام جی سکپال برطانوی سرکار کے فوج میں ملازم تھے۔ یعنی برطانوی سرکار کے جو فوج تھے ان میں نوکری کرتے تھے۔ ان دنوں برطانوی سرکار نے فوج میں کام کرنے والوں کے لیے تعلیم کو لازم قرار دے رکھا تھا۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے دادا اور والد دونوں سرکاری نوکری کرتے تھے۔ ان کے والد سکپال برطانوی فوج کے ملازم تھے۔ اس وقت کی بات ہے جب بھارت میں انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس وقت انگریزوں نے ایک قانون بنا رکھا تھا کہ جو بھی فوج میں ملازمت اختیار کرے گا اس کو پڑھنا لازم ہے، ان کے بچوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ بھیم راؤ کی عمر ابھی 2 برس کے ہی تھے کہ ان کے والد فوج کی ملازمت سے تبکدوش ہوئے۔ یعنی بھیم راؤ امبیڈکر کی عمر ابھی 2 سال ہی کے تھے کہ ان کے والد فوج کی ملازمت سے تبکدوش ہو گئے، یعنی فوج سے ریٹائرمنٹ ہو گیا۔ 14 برس تک رام جی فوجی اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہے۔ تبکدوشی کے وقت ان کا عہدہ دوسرے گرینس میں صوبیدار میجر کا تھا۔ یہ خاندان سینٹرل انڈیا کو چھوڑ کر کوکنی کے علاقے میں ڈاپو والی مقام پر جا بسا۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے والد رام جی سکپال فوجی اسکول کے 14 سال تک ہیڈ ماسٹر رہے۔ ان کی تبکدوشی کے وقت، ان کی ریٹائرمنٹ کے وقت وہ صوبیدار میجر کا پوسٹ پر تھے۔ یہ خاندان سینٹرل انڈیا کو چھوڑ کر کوکن کے علاقے میں ڈاپو والی میں جا بسا تھا۔ 5 سال کی عمر میں امبیڈکر کا اسکول میں داخلہ ہوا۔ جب امبیڈکر کی عمر 5 برس کی ہوئی تو ان کے والدین نے، ان کے ماتا پتا نے انہیں اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ بھیم راؤ ابھی 6 سال کے ہی تھے کہ ان کی ماں بھیما بائی کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ رام جی کی بہن نے اس خاندان کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ جب بھیم راؤ امبیڈکر کی عمر 6 سال کی تھی تو ان کی والدہ، ان کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر بھیم راؤ امبیڈکر کی دیکھ بھال ان کی پھوپھی کرتی ہے۔ جلد ہی ان کے والد رام جی کو ستارہ میں نوکری مل گئی۔ اس طرح یہ خاندان ستارہ چلا گیا۔ یہاں پر بھیم راؤ کا روحانی
ने गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हो गया। यानी भीमराव अम्बेडकर सितारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला लिया। सितारे में तालीम के दौरान उन्होंने अपने नाम के आगे अम्बेडकर लिखना शुरू किया। यानी भीमराव अम्बेडकर जिस वक्त सितारा हाई स्कूल में पढ़ रहे थे उस दरमियान उन्होंने अपने नाम के सामने अम्बेडकर लिखना शुरू किया। दरअसल भीमराव अम्बेडकर के दादा परदादा कोकीन के इलाके में अम्बावती के रहने वाले थे। मराठी जुबान बोलने वाले लोगों की रिवायत है कि वह अपनी जात के साथ अपने रिहायशी मकाम का नाम लगाते थे। जब भीमराव अम्बेडकर सितारे में तालीम हासिल कर रहे थे उसी दरमियान उन्होंने अम्बेडकर लिखना शुरू कर दिया अपने नाम के सामने। भीमराव अम्बेडकर के वालिद दादा परदादा अम्बावती के रहने वाले थे। मराठी जुबान में ये रिवायत रही है कि अपनी जात के साथ अपने रिहायशी मकाम का नाम लगाते थे। भीमराव अम्बेडकर ने 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। उन्होंने 1912 ईस्वी में एलिफिंस्टन कॉलेज से बीए का डिग्री हासिल की। भीमराव अम्बेडकर को बड़ौदा स्टेट से तालीमी वजीफा मिला। तालीमी वजीफा पर वो आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। भीमराव अम्बेडकर को बड़ौदा स्टेट की जानिब से उन्हें पढ़ने के लिए वजीफा दिया गया, जिसके बदौलत वो अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। उन्होंने माशियात में उसी यूनिवर्सिटी से एमए किया। उसके बाद 1916 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री हासिल किया। यानी भीमराव अम्बेडकर को बड़ौदा स्टेट की जानिब से तालीमी वजीफा मिला था, जिसके बदौलत वह अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ से उन्होंने माशियात यानी इकोनॉमिक्स में एमए किया और 1916 में उसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। उन्होंने फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उसके साथ ही वो इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्टरी तैयारी करते रहे। लेकिन 1917 ईस्वी में उनका ये तालीमी सिलसिला उस वक्त रुक गया जब स्टेट से मिलने वाला वजीफा मदद के लिए था बंद हो गया। नतीजतन उन्हें हिंदुस्तान वापस आ जाना पड़ा। यानी भीमराव अम्बेडकर अमेरिका से फिर लंदन चले आया। उन्होंने दाखिला लिया लंदन के यूनिवर्सिटी में। फिर वहाँ से इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्टरी की तैयारी करने लगे। उसी दौरान बड़ौदा से जो तालीम वजीफा मिल रहा था वो बंद हो गया, जिसके नतीजा में उन्हें हिंदुस्तान वापस आना पड़ा। हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से सिटी होम कॉलेज में मुलाजमत शुरू कर दी। उस ओहदे पर 1918 से 1920 ईस्वी तक काम करते रहे। उसी दौरान उन्होंने अपनी तनख्वाह के कुछ रुपया बचाकर महफूज कर लिए थे और कुछ दूसरे मुखलिसिन ने यानी कुछ दोस्तों ने दाद की, जिसकी बदौलत दोबारा 1920 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए और अधूरी तालीम अपनी मुकम्मल की। यार हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स ऑफ इकोनॉमिक्स की हैसियत से सिटी होम कॉलेज में मुलाजमत शुरू कर दी। उस ओहदे पर 1918 से 1920 तक रहे, यानी 2 साल तक रहा। उस सिटी होम कॉलेज में टीचिंग का काम
करते रहे और टीचिंग का तनख्वाह के कुछ रुपये बचाकर महफूज कर लिए थे और कुछ दोस्तों ने उनकी मदद की। फिर दोबारा उन्होंने 1920 में इंग्लैंड चले गए और वह अपनी अधूरी तालीम मुकम्मल की। भीमराव अम्बेडकर ने 1981 ईस्वी में MSc और 1923 ईस्वी में DSc की डिग्रियां हासिल की और बैरिस्ट्री भी पास कर ली। हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया। उस वक्त से वह समाजी इस्लाही और सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने लगे। यानी भीमराव अम्बेडकर अपनी तालीम मुकम्मल कर गए। जब हिंदुस्तान वापस आए तो वह वकालत का पेशा इख्तियार किया और उसी दौरान उन्होंने सियासी, समाजी और इस्लाही सरगर्मी में हिस्सा भाग लेने लगे। उनके भीमराव अम्बेडकर का शुमार जदीद हिंदुस्तान के मुआम्मारों में होता है। जब भीमराव अम्बेडकर की उम्र 14 बरस थी और 5वीं दर्जा के तालिब इल्म थे तो उनकी शादी 9 बरस की लड़की रामाबाई से हुई। यानी जब भीमराव अम्बेडकर की उम्र 14 बरस थी और 5वीं क्लास में पढ़ते थे उस दौरान और 9 बरस की लड़की रामाबाई से उनकी शादी कर दी गई, उनकी शादी हो गई। भीमराव अम्बेडकर हिंदुस्तानी समाज में छुआछूत के रिवाज से बहुत बरहम और बेजार थे, इसलिए उन्होंने कबूल कर लिया। उनके इस कदम से मुतासिर होकर दूसरे अछूत तबका के लोगों कसीर तादाद ने अपना मजहब तब्दील कर लिया और बुद्धिस्ट हो गए। यानी भीमराव अम्बेडकर हिंदुस्तानी समाज में जो छुआछूत है, बड़ा छोटा का रिवाज है, उनसे वो बहुत बरहम हुए, बहुत उनको नापसंदीदा लगा। इसलिए उन्होंने हिंदू मजहब को छोड़कर बौद्ध धर्म इख्तियार कर लिया, बौद्ध धर्म कबूल कर लिया। उनको देखते हुए बहुत से अछूत तबके के लोग भी अपने मजहब तब्दील करके बुद्धिस्ट बन गए। 5 दिसंबर सन 1956 ईस्वी की रात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोने के लिए बिस्तर पर गए तो नींद ही में वफात पा गए। यानी भीमराव अम्बेडकर 5 दिसंबर सन 1956 ईस्वी को रात में सोते हुए इस दुनिया फानी से अलविदा कर गए, गहरी नींद में सो गए। अब आइए आपकी किताब द्राक्षा में जो मुख्तसर तरीन सवालात दी गई है उन सवालातों को हम देखते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल है, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। सवाल, भीमराव अम्बेडकर के वालिदैन के नाम लिखे। यानी वालिदैन का मतलब होता है माँ और बाप दोनों। सिर्फ वालिद का मतलब होता है सिर्फ बाप और वालदा का मतलब होता है सिर्फ माँ। जब दोनों के नाम लिया जाए तो उस वक्त वालिदैन अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। वालिदैन का मतलब माँ और बाप दोनों होते हैं। जवाब, उनके वालिद के नाम रामजी मालूजी सिकपाल था और उनके वालिदा का नाम भीमाबाई। सवाल, भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से शबकदोश हुए? जवाब, भीमराव के वालिद शबकदोशी के वक्त उनका ओहदा दूसरी ग्रेंस सूबेदार मेजर का था। सवाल,
भीम राव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? जवाब, 14 बरस की उम्र में 9 बरस की लड़की रामाबाई से हुई। सवाल, बीए करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? जवाब, एलिफिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। सवाल, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? जवाब, निर्वाण का मतलब निजात है और जिसको निजात हासिल हो गई उसे बुद्ध मजहब में निर्वाण कहते हैं। इससे लोग भीमराव अंबेडकर की वफात को बुद्धिस्ट कहते हैं कि वो निर्वाण उसे हासिल हो गई, वो जन्नत में चले गए और कामयाब हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सरताज अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगले वीडियो मिलते हैं, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।